So let us quickly go through one concept. What are the things that we are going to see now? The first thing is the value of one parameter, which is known as ripple factor. The ripple factor is the amount of AC available in DC. It is a rough definition of the ripple factor. But how we are going to represent this ripple factor mathematically? So the ripple factor is nothing but the ratio of RMS value of AC component to the DC component in the output. This ripple factor is indicated by this letter R. So what is value of R that they are giving? So RMS value of AC component, I am just putting it around. RMS value of AC component divided by DC divided by DC value of component. So this is represented by VR RMS divided by V DC. So how we are going to represent VR RMS? VR RMS is RMS value of the AC component. So VR RMS is given by root of VRMS square minus VDC square. So I hope all of you know this, what is VRMS and what is VDC. So you divide this by VDC square, divide this by VDC square. So what you are going to get is under root of VRMS upon VDC bracket square minus 1. So one thing is clear. Now what you have to work upon is this particular box. That is under root of VRMS upon VDC square minus 1. So what you have to take is now only VRMS and VDC values. Now simply in order to calculate this particular ripple value, what you have to do is you need to go through RMS value and average value. VDC is nothing but V average value of the waveform. And then you need to find it out and then you have to proceed further. So how you calculate the RMS value, you know that, you know these things. How you calculate the RMS value? The VRMS square can be given as VRMS square is equal to total time period 1 upon T integration from 0 to T V of theta d theta. This is what you have seen. And then how you calculate the average value of any waveform? We calculate average value can be given as 1 upon T integration from 0 to T. Then V of theta integration from 0 to T, then V of theta d theta. So now by looking towards waveforms of half wave rectifier and full wave rectifier, you just have to do this exercise. So let us quickly see how the half wave waveform and full wave waveform do appear in front of you. Positive half cycle, 0, positive half cycle, 0 in this manner. This is how you get your waveform for a half wave rectifier. So this up to 0 to pi, this waveform functions properly, and up to pi to 2 pi, this waveform has a 0 output. तो ये जो वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलता है, the maximum value of positive voltage, this waveform, this voltage is given by voltage Vm. ओके, तो अभी आपको पहले ये डिसाइड करना है बॉस इसका टाइम पीरियड कितना है. ये सब हमने लास्ट ईयर भी देखा था. तो टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड तो क्लियरली दिखता है. वेवफॉर्म का टाइम पीरियड है 0 to 2 पाई.
अब ये 0 to 2 पाई के टाइम पीरियड में इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन भी क्लियरली दिखता है। इसका इक्वेशन है v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा। लेकिन ये इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो ये इक्वेशन है मेरा 0 से लेके पाई तक, और बाद में पाई से लेके 2 पाई तक क्या इक्वेशन है, सो पाई से लेके 2 पाई तक इसका जो आंसर है वो है 0। चलो अब ये जो हाफ वेव का वेव फॉर्म है ना, इसका एवरेज वैल्यू लिखते हैं बच्चों। क्या देखा हमने एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला, दिस गिवन इक्वेशन वी एवरेज कैन बी गिवन एज वी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब कितना हो जाएगा 1 अप इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। अभी हमने देखा इक्वेशन तो सिर्फ 0 से पाई के लिए ही है, पाई से 2 पाई पे इक्वेशन का वैल्यू 0 आता है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई वी एम साइन थीटा डी थीटा बराबर है। वी एम कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, बाहर निकालिए, ये आएगा वी एम अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। तो दिस बिकम्स साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ, माइनस बाहर ले रहा हूँ मैं, माइनस ऑफ वी एम अपॉन 2 पाई कॉस ऑफ थीटा 0 to पाई, पुटअप करना है इसको, माइनस ऑफ वी एम अपॉन 2 पाई, आगे पुटअप करता हूँ बच्चों, क्या आएगा माइनस ऑफ वी एम अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वी एम अपॉन 2 पाई, कॉस ऑफ पाई क्या है -1, कॉस ऑफ 0 क्या है 1। तो इस तरीके से -1 2 बनता है, और आपको वी एवरेज का वैल्यू मिलता है, वी एवरेज इज इक्वल टू 2 वी एम अपॉन 2 पाई, 2 कैंसल, फाइनल आपका आंसर आता है वी एम अपॉन पाई। तो इस तरीके से आपको जो आपका पहला क्वांटिटी मिलता है वी एवरेज, तो वी एवरेज का वैल्यू आपका आता है वी एवरेज इज इक्वल टू वी एम अपॉन पाई। अभी सिमिलरली आपको वी आर एम एस निकालना है, तो वी आर एम एस स्क्वायर का हमने फॉर्मूला क्या दिया था, वी आर एम एस स्क्वायर, याद है आपको क्या दिया था फॉर्मूला, 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, और ये क्या था वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी थोड़ा देखना, वी एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, यहाँ पर ये होता है वी एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई। टाइम स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा वी एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना। अभी ये जो 1 है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा थीटा, लिमिट्स क्या आएंगे 0 to पाई, माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है ये चीज़ आता है साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2, लिमिट आएंगे 0 to पाई। अभी इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि वो साइन का इंटीग्रेशन जो है उसकी तरफ ध्यान देने का आपको ज़रूरत नहीं है, वो आपको फाइनल वैल्यू 0 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर आंसर आता है वी एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू ब्रैकेट पाई माइनस 0।
तो आपको जो फाइनली वी आर एम एस स्क्वायर का वैल्यू मिलता है वो वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर अपॉन 4। वी आर एम एस का वैल्यू आएगा दोनों का टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स, वी आर एम एस वैल्यू आएगा आपका वी एम अपॉन 2। और बच्चों वी एवरेज का वैल्यू कितना था याद है क्या आपको? मेरे ख्याल से वी एवरेज का वैल्यू हमने निकाला था वी एम अपॉन पाई, वी एम अपॉन पाई, समझे? अब सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी बच्चों। ये देखिए यहाँ पर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर का, मैं एक बार वापस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर का पहले वेवफॉर्म ड्रॉ किया, वेवफॉर्म ड्रॉ करने के बाद में उसका इक्वेशन लिखा, मैथमेटिकल इक्वेशन, कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको कहाँ से कहाँ तक क्या मिलता है। तो आपका टाइम पीरियड है 0 to 2 पाई, आपका इक्वेशन है ये देखिए, ये 3 लाइनों को देखिए, ये जो 3 लाइन है आपका इक्वेशन है 0 to 2 पाई। आपका टाइम पीरियड है 0 to 2 पाई, उसमें से 0 to पाई तक आप लोगों के पास वेवफॉर्म अवेलेबल है, पाई से 2 पाई तक नहीं है। फिर आपने वी एवरेज का इक्वेशन लिखा 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t वी एम साइन थीटा डी थीटा। इसके बाद में आपने इसको सॉल्व किया, सिमिलरली आपने आर एम एस का इक्वेशन लिखा, और फाइनली आपको ये जो चीज़ है ये आपको यहाँ पर आपको कंक्लूजन मिल गया है कि आपका आर एम एस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मैथमेटिकल टर्म्स में क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपके हाथ में भी आपका सॉल्यूशन है वी आर एम एस और वी एवरेज का। अभी आपने ये पूरा ड्रामा क्यों किया था आपको याद है? आपने ये पूरा ड्रामा किया था आपका रिपल फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। ये जो रिपल फैक्टर है, रिपल फैक्टर आर, तो अभी इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या? हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था याद है? तो मैं यहाँ पर आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। ये रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने का ये देखिए, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, ये फॉर्मूला देखिए रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने का, आर एम एस अपॉन एवरेज ब्रैकेट स्क्वायर -1, डीसी मतलब एवरेज वैल्यू। तो अभी मैं इसे यहाँ पुटअप करूँगा, रिपल फैक्टर आर एम एस वैल्यू कितना आया है आपका, देखिए बड़ा ब्रैकेट, आर एम एस वैल्यू कितना आया है? आर एम एस वैल्यू है आपका वी एम अपॉन 2। एवरेज वैल्यू कितना आया है आपका? वी एम अपॉन पाई। ये दोनों का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और ये रूट के अंदर -1। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। वी एम कैंसिल हो जाएगा, वी एम कैंसिल हो जाएगा। ये ब्रैकेट के रूट के अंदर क्या बचेगा? रूट के अंदर बचेगा पाई/2 स्क्वायर -1। अगर आपके हाथ में कैल्सी है तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। यू विल गेट वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर इज इक्वल टू 1.21। you will get value of ripple factor is equal to 1.21. Similarly, you have to calculate efficiency. So to calculate efficiency, you have to perform this particular, मैं अभी आपको डायरेक्ट लिख के देता हूँ बच्चों। In same manner you have to calculate efficiency. Efficiency के लिए आपका फॉर्मूला आता है, efficiency is nothing but the ratio of DC output power to the ratio of input power AC which has been applied. So DC output power is represented by V DC square divided by load component RL, and AC output power is represented by V RMS square divided by load component RL। RL गायब हो जाएगा और आप V DC स्क्वायर डालिए। V DC स्क्वायर, V DC मतलब V एवरेज जो आपने कैलकुलेट किया है उसका वैल्यू कितना है वो देखिए, VM अपॉन पाई। तो जो आपने VDC कैलकुलेट किया हुआ है उसका वैल्यू कितना है? VM अपॉन पाई। तो ये इधर ब्रैकेट में RL कैंसिल हो जाएगा, इधर ब्रैकेट में ऊपर की तरफ बचता है VM अपॉन पाई ब्रैकेट स्क्वायर, इधर नीचे की तरफ RMS का वैल्यू है VM/2
ये बचता है Vm/2 ब्रैकेट स्क्वायर, Vm भी कैंसिल होता है, और वो बाद में आपका इफ़िशेंसी जो होता है वो इफ़िशेंसी बचता है 4/π²। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये होता है 0.406, मतलब कितना हो गया 40.6%। ये हो गया आपका सर का इफ़िशेंसी। जाएंगे फुल वेव की तरफ। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मालूम है फुल वेव में का वेवफॉर्म कैसे होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी आपको आउटपुट मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आपको आउटपुट मिलता है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि दिस इज योर मैक्सिमम वोल्टेज Vm, इफ़ यू से दैट दिस इज योर मैक्सिमम वोल्टेज Vm plus Vm, so how you get your waveform? You get positive half cycle also rectified, you get negative half cycle also rectified, so you get positive, positive and positive and positive and positive and positive and so on. So if I want to represent this waveform, I can see this is my pi, this is my 2 pi, this is 3 pi and so on. Okay, so now let us write down what is the first question is, what is the time period of this waveform. So I can see that the time period of the waveform can be given by 0 to pi, because after pi the waveform starts repeating. So after that, what will be the equation of the waveform? So the equation of the waveform will be V of theta is equal to Vm sin theta, and this is true from the entire time period 0 to pi. So मैं अभी एवरेज और RMS का यहाँ पर इक्वेशन लिखने वाला हूँ स्टूडेंट्स। अभी ये मैथमेटिक्स वापस सॉल्व करेंगे। वी एवरेज मतलब VDC। सो वी एवरेज का फॉर्मूला आएगा वी एवरेज इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi Vm sin थीटा डी थीटा। तो अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें और वो हाफ वेव वाले में इमीडिएट डिफरेंस हमको क्या दिखता है, तो वो वहाँ पर 1/2 था और यहाँ पर 1/π है। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट वे में इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम Vm/π। ब्रैकेट में क्या आता है हमको मालूम है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा 0 to pi। इसको सॉर्ट आउट कर देंगे यहाँ पर, माइनस ऑफ Vm/π, और ये ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0। सब हम लोगों को मालूम है वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली आ जाएगा 2Vm/π, और हम लोगों को यहाँ पर वी एवरेज का वैल्यू मिल जाएगा। वी एवरेज कैन बी गिवन एज 2Vm/π। सिमिलरली हमने Vrms² के लिए भी देखा था। Vrms² के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, Vrms² कैन बी गिवन बाय सिमिलरली 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi Vm² sin स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पर भी देखो वो 1/2 के जगह पर 1/π आया है। बाद में हमने सेम चीज़ें की थी, आपको याद होगा तो। Vm² को बाहर निकालेंगे, सो आई विल गेट Vm²/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2θ/2। इसको बाद में सॉर्ट आउट करके हम कैसे करते हैं, Vm²/2π। और अभी हम सब लोगों को यहाँ पर मालूम है, इधर ब्रैकेट में आएगा π-0, तो ये ब्रैकेट में बचता है पाई ओनली। तो आपको Vrms का वैल्यू मिलता है Vrms², व्हाट यू गेट इज यू विल गेट इज इक्वल टू Vm²/2। ये Vrms² का वैल्यू है। तो Vrms क्या बनेगा, Vrms कैन बी गिवन एज
Vm/√2। तो यहाँ पर भी ध्यान देना, दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस कौन से हैं आपके, ये है Vrms और ये है V एवरेज। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके हाथ में लग गई। V एवरेज इज इक्वल टू Vm/2Vm/pi एंड Vrms इज इक्वल टू Vm/√2। आपको ये दोनों चीज़ें मिल गई स्टूडेंट्स। चलो अभी क्या करेंगे, अभी आपको क्या निकालना है, रिपल फैक्टर का वैल्यू। रिपल फैक्टर के वैल्यू में हमने क्या देखा था, याद होगा आपको। चलो स्टार्ट करो, अभी आपको करना है ये। रिपल फैक्टर के वैल्यू में क्या देखा था, रूट ऑफ Vrms अपॉन VDC ब्रैकेट स्क्वायर -1। चलो अभी आपको करना है ये। Vrms का वैल्यू क्या था, Vm/√2। VDC का वैल्यू क्या था, एवरेज का 2Vm/pi ब्रैकेट स्क्वायर -1। Vm कैंसल, √2/2/पाई नीचे बचता है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, रूट ऑफ ये बचेगा π² 8 -1। तो रिपल फैक्टर का वैल्यू कितना आता है, रिपल फैक्टर यू आर गोइंग टू गेट 0.482। so this will be your value of ripple factor for full wave rectifier। सिमिलरली हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, रेशो ऑफ PDC अपॉन PAC। कैसा लेंगे, DC पावर VDC स्क्वायर अपॉन RL। DC पावर क्या है, VDC स्क्वायर अपॉन RL। और AC पावर क्या है, VAC स्क्वायर अपॉन RL। अभी आप VDC मतलब जो आप लोगों ने आपका V एवरेज का वैल्यू निकाला है, सो दिस बिकम्स 2Vm/pi स्क्वायर डिवाइड बाय AC क्या है आपका, AC पावर Vm/√2। तो Vm/√2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इफ़िशियंसी का वैल्यू मिलेगा। इफ़िशियंसी इज इक्वल्स टू, सॉल्व करो उसको, आपको यहीं पर लिख देता हूँ मैं, 8/pi²। इसको आपके कैलसी में सॉल्व करना तो आपको मिलेगा 0.812। In this manner efficiency of this will become 81.20%. So this is another conclusion.